programmable logic array. It is the last unit of digital fundamental, module number 5. Okay, and most important, आपके मिड सेम में ओनली 3-4 चैप्टर ही रहेंगे. ओके, 5 आपके मिड सेम में नहीं रहेगा. ओनली 3 and 4 दो चैप्टर ही आपके मिड सेम में रहेंगे. ठीक है, मॉड्यूल नंबर 5 नहीं होगा और आगे का भी कुछ भी नहीं होगा. 1-2 नहीं होगा. ओनली 3-4 आपकी मिड सेम 2 में कवर्ड होंगे. ओके, सो मॉड्यूल 5 इस वीक में जितना होगा उतना ही मैं करवाऊंगी, हाफ जितना. आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक में मैं रिवीजन करवा दूंगी, क्योंकि अब इतना आपकी मिड सेम है तो उससे पहले एक बार आपके जो भी 3rd and 4th है उसका रिवीजन करवा दूंगी, क्योंकि वैसे भी इतना बाकी नहीं है सिलेबस में. तो मैं हाफ 5th करवाऊंगी अभी इस पूरे वीक में. आफ्टर दैट नेक्स्ट वीक में आपका वो पूरा रिपीट करवा दूंगी. ठीक है, मतलब 3 and 4th. So unit number 5, semiconductor memories and programmable logic devices. Okay, memory normally we just use the memory, ROM, RAM in our laptop, mobile, as well as for store information, for reading the information, as well as for writing any information at a particular address location. Okay, and programmable logic device means we have to program our memory in a such a way so we can program these memories as per our application. So it is a programmable logic device. So these are the simply the points or topics which will be covered in your this unit number 5. Yeah, actually ये module number 5 है, मैंने यहाँ पे change नहीं किया. It is module number 5. Okay, so which covers the memories, ROM, RAM, and different types of memories also there. It is a CAM also there. For a CCD, it is a charge decoupled device memory. And last one, these are the complex programming like logic devices. It is a CPLD and FPGA, field programmable gate array. Okay, उसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई भी like ज़्यादा यूनिट से अगर बना है, so it is the FPGA. Field programmable gate array consists of numbers of gate in like rows as well as in columns. Okay, nowadays this Xilinx company normally work on this FPGA. Okay, these topics to be covered. It is a memory organization and operation. How we can increase or expanding the memory size in word of word capacity or word size, दोनों आएंगे उसमें. ठीक है. Now next one is a classification characteristic of memory and programmable logic array, programmable array logic, complex programmable logic device, and field programmable gate array. So it is a FPGA. Okay, normally ये FPGA आपको short run में पूछ सकते हैं, and PLA and PAL उसके आपको example पूछ सकते हैं. ठीक है. So first one, memory organization and operation. Okay, so memory consists of first one, bidirectional data bus. First of all, memory में एक्चुअल में होता क्या है? Numbers of address location, and at a particular address location, particular data is stored. Particular memory address पे data क्या होता है? Store होता है. Okay, already वो available ही है. Memory मतलब वो क्या करता है? Particular address location पे data already remember ही मतलब already write किया हुआ ही है. Okay, now if this is address bus. अगर मैं कुछ भी एड्रेस यहाँ पे लिखती हूँ, सो एड्रेस बस थ्रू क्या होगा? पास होगा इन मेमोरी, एंड एट अ पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे जो भी डेटा स्टोर होगा वो आउट होगा. ठीक है, मुझे ये एड्रेस लोकेशन सिंपली कॉल करवाना है, तो उस एड्रेस लोकेशन पे जो भी डेटा है वो वर्क करेगा, या फिर आप रीड कर सकते हैं उसको. ठीक है, उस डेटा. ओके, सो वन टाइम क्या होगा कि आपने रीड किया. नाउ नेक्स्ट, ऐसा भी हो सकता है कि पर्टिकुलर डेटा में दूंगी, वो पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे क्या होगा? राइट होगा. सो जो डेटा बस है वो दोनों साइड है. क्यों? एक तो वो रीड करेगा मतलब डेटा आउट होगा, दूसरा क्या होगा? एट अ इनपुट साइड में कोई डेटा दूंगी एंड यहाँ पे कोई एड्रेस दूंगी, तो पर्टिकुलर एड्रेस पे ये डेटा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा. सो दिस मेमोरी परफॉर्म टू टाइप्स ऑफ ऑपरेशन, राइट ऑपरेशन एंड रीड ऑपरेशन. Okay, mainly two types of operations are there, write operation and read operation. Okay, so bidirectional data bus. Why this require bidirectional data bus? One for reading, one for
वैरायटी एंड एड्रेस बस की रिक्वायरमेंट तो आपको होगी क्योंकि आपको एड्रेस ही देना पड़ेगा, उसके बाद उस एड्रेस लोकेशन पे जो भी डेटा है वो हम रीड कर सकते हैं, या फिर पर्टिकुलर डेटा हमने दिया है तो पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे उसको राइट कर सकते हैं. ओके, सो इट इज ए रीड एंड राइट कंट्रोल. नाउ दिस वन इज अ चिप सिलेक्ट, CS. इसका मीनिंग क्या है? If I put CS is equal to 1 then and then this memory is unable. If I put CS is equal to 0 तो मेमोरी क्या हो जाएगी? डिसेबल, मतलब वो कुछ भी वर्क नहीं करेगी. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको सिलेक्ट करना रिक्वायरमेंट है मेमोरी को. दैट्स व्हाई इट इज अ चिप सिलेक्ट एंड चिप सिलेक्ट को मुझे क्या देना है? 1. देन एंड देन ये मेमोरी क्या करेगी? वर्क करेगी एज ए रीड एज वेल एज ए राइट ऑपरेशन. ओके, सो इट इज सिंपली मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑपरेशन. नेक्स्ट वन, मेमोरी एक्सपांसन. ओके, सो मेमोरी एक्सपांसन 2 टाइप के हो सकते हैं. कैसे 2 टाइप के? यहाँ पे देखो, मैंने एक रैम लिया हुआ है. रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, अभी आगे आएगा वो, ठीक है. ROM एंड ROM 2 टाइप्स ऑफ मेमोरी आर देयर. ROM मीन्स रीड ओनली मेमोरी, वो सिर्फ रीड का काम करती है. एंड RAM, सो इट इज ए रैंडम एक्सेस मेमोरी which perform 2 operation, read as well as write. RAM है रैंडम एक्सेस मेमोरी, वो दोनों ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, रीड एंड राइट के. बट अगर ROM है वो सिंपली क्या करता है? रीड करता है. ओके, सो मेमोरी एक्सपेंशन कैसे करना? मुझे एक रैम दी है, रैम 1 16x4. अभी 16 का मीनिंग क्या है? यहाँ पे देखो, एड्रेस कितने दिए मुझे, कितने बिट्स का है एड्रेस? 4 बिट का. सो टोटल कितने लोकेशन पॉसिबल है इसमें? 2:4 मीन 16, मतलब इसमें 16 एड्रेस अवेलेबल है एंड 16 एड्रेस पे 16 डेटा स्टोर्ड है. एंड 4 का मीनिंग क्या है? ईच एंड एवरी डेटा विच इज स्टोर्ड इन योर लोकेशन इज कॉन्सिस्ट ऑफ 4 नंबर्स ऑफ बिट्स. ओके, 4 का मीनिंग क्या है कि पर्टिकुलर एड्रेस लोकेशन पे जो भी डेटा स्टोर है वो कितने बिट्स से बना हुआ है? 4 बिट्स से बना हुआ है. सो इट इज 16x4. 16 मीन्स numbers of address location and 4 means at a particular location data consists of 4 numbers of bit. okay okay, now हम इसको एक्सपांड कैसे करेंगे मेमोरी को? सो आप 2 वे से उसको एक्सपांड कर सकते हैं. एक तो वर्ड साइज में इंक्रीज करना. अब वर्ड साइज का मीनिंग क्या है? ये देखो, ये 4 मतलब मेरा जो भी डेटा था, या फिर मैं ऐसा एज्यूम करी कि वो एक वर्ड था, वो कितने बिट से बना हुआ है? तो 4 बिट. मुझे अगर वर्ड साइज इंक्रीज करनी है, ओके, सो मुझे 4 की जगह पे क्या चाहिए? आपको यहाँ पे बोला है, देखो 16x8. एक पर्टिकुलर डेटा जो 4 बिट से बना है. नाउ दिस पर्टिकुलर डेटा वी हैव टू फॉर्म आवर रैम इन दिस वे, सो दिस डेटा कंसिस्ट ऑफ 8 बिट. अब 4 बिट का नहीं रखना डेटा, कितने बिट का कर देना मुझे? 8 बिट का. मतलब वो वर्ड की साइज में इंक्रीज हुआ. पर्टिकुलर लोकेशन पे जो डेटा, या फिर आप उसको वर्ड बोल सकते हैं, जो भी वर्ड स्टोर था वो कितने बिट से बना हुआ था? एक्चुअल में 4 बिट से, बट मुझे उसकी साइज को इंक्रीज करना है. दैट्स व्हाई इट इज अ वर्ड साइज. कितने बिट का बनाना है मुझे? 8 बिट का. तो हम क्या कर सकते हैं कि वी हैव कंबाइंड अ सेवरल 16x4 रैम टू फॉर्म अ 16x8 रैम. ये दो 16x4 रैम है, उसको हम कंबाइन करके क्या बना सकते हैं? 16x8. मतलब अब पर्टिकुलर डेटा जो भी है वो क्या होगा? कितने बिट का बन जाएगा? 8 बिट का बन जाएगा. कैसे बनेगा वो देखो, मैंने यहाँ पे 2 रैम ली है, रैम 1 रैम 2 एंड बोथ कंसिस्ट ऑफ 16x4. ओके, दोनों को कंट्रोल सिग्नल दिया है, रीड एंड राइट का. यहाँ पे चिप सिलेक्ट दिया हुआ है. ऑफ कोर्स चिप सिलेक्ट मुझे 0 देना पड़ेगा. देन बबल होके यहाँ पे क्या पहुंचेगा? 1. नाउ 1 बाय 1 में एड्रेस दे रहे हैं, 0 A1 A2 A3 A1 A0 A2 A3. ठीक है, ये जो भी लोकेशन पे जो भी डेटा होगा वो यहाँ पे क्या होगा? आउट होगा. कि A0 में कुछ डेटा है तो वो आउट होगा, D0 D1 D2 D3 करके. सेम यहाँ पे अगर है A1 A0 A3 A2 तो वो किस तरह से आउट होगा? कि D0 D1 D2 एंड D3 के फॉर्म में आउट होगा. ठीक है, लेकिन नाउ क्या होगा? यहाँ पे देखो, ये D0 के साथ कनेक्टेड है, फिर D1 फिर D2 फिर D3. बट नाउ ये D0 है ना, वो 4th नंबर का बीट बनेगा. जो सेकंड का जो D0 होगा वो 4th नंबर का बीट बनेगा. उसके बाद 5th, उसके बाद 6 एंड उसके बाद 7. सो नाउ अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करती हूँ तो वर्ड की साइज क्या हो जाएगी? 8 नंबर्स ऑफ बिट. सिंपली इन दोनों को अगर अलग अलग करने की जगह मैंने क्या किया? D0 को एज ए D4 लिया है, D1 को एज ए D5, D2 को एज ए D6 एंड D3 को एज ए D7 हो गए. सो टोटल कितने बिट बन गए? नाउ D0 से लेके अप टू D7.
Okay, so by combining several 16 cross 4 RAM, we can generate a 16 cross 8 RAM. It is a random access memory. It is a memory expansion, but in expanding of word size, मैंने simply word size increase किया है, not a word capacity. Next, word capacity आएगा. What is the difference between word size and word capacity? Word size means particular word consists of numbers of bit. It is a word size. हम उसको increase कर सकते हैं. But word capacity का meaning क्या है? कितनी कैपेसिटी है इस रैम की, कितने वर्ड को वो स्टोर कर सकते हैं? तो ऑफकोर्स 16, क्योंकि 16 लोकेशन है और 16 लोकेशन पे डेटा स्टोर है, मीन्स वर्ड स्टोर है. ओके, सो वर्ड की कैपेसिटी क्या हुई? 16. नाउ अगर मुझे वर्ड की कैपेसिटी इंक्रीज करनी है तो कैसे कर सकते हैं? नाउ सेकंड क्राइटेरिया आएगा एक्सपांडिंग द वर्ड कैपेसिटी. मुझे ये 16 है ना, उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना. सो नाउ इट इज ए एक्सपांडिंग द वर्ड कैपेसिटी. एक एग्जांपल दिया है वर्ड साइज एक्सपांशन का है. देखो, आपको 1K क्रॉस 8 प्रोम दिया हुआ है. आपको क्या करना है? उसको 4K क्रॉस 8 प्रोम में कन्वर्ट करना है. कैसे हो सकता है? I just take the 4 numbers of 1K 8 cross 8 prom. देखो, we need a total 4 numbers of this chip to make a 4K cross 8 prom chip. Of course, कितने चाहिए मुझे? 4 chips चाहिए. ठीक है, तो हम बना सकते हैं 4K cross 8 prom chip. Now next one, memory expansion in a meaning of expanding a word capacity. मुझे word की capacity increase करनी है. ठीक है, सो कैसे होगा? नाउ आपको क्या दिया है? 8 8 8, मतलब यहाँ पे 8 टोटल कितने पॉसिबल है? यहाँ पे 0 to 9 आपको दिए हुए हैं. ठीक है, सो टेन नंबर्स की आपकी एड्रेस लाइन होगी. यहाँ पे देखो 0 to 9 कितनी एड्रेस लाइन है? यहाँ पे 10 एड्रेस लाइन. ठीक है, 2^10 मतलब कितने वर्ड्स बनेंगे? इट इज 1024. कितने वर्ड बन सकते हैं? 1024. ठीक है, सेम मुझे यहाँ पे उसकी कैपेसिटी को इंक्रीज करना है. सो हम क्या कर सकते हैं उसको? यहाँ पे 1K है, 1K 1K एंड 1K. ओके, सो 0 to 9 लिया मैंने यहाँ पे, तो 2^10 मीन्स 1024. यहाँ भी 1024, यहाँ भी 1024 एंड यहाँ भी 1024. सो इट इज 1024 प्लस 1024 प्लस 1024 प्लस 1024. उतने बिट्स आएंगे. कितने बिट्स आएंगे? 4 टाइम्स ऑफ 1024. उतने वर्ड्स जनरेट होंगे. एक में कितने जनरेट हो रहे हैं एक्चुअल में वर्ड? तो के 1024, इसके 1024, इसके 1024, इसके 1024. लेकिन सबको एक्टिवेट कैसे करेंगे? So we just activate by using 0 to 4 adder decoder, 2 cross 4 decoder. 2 cross 4 decoder कैसे वर्क करता है? जैसे ही मैं सिलेक्ट करूंगी, ये मैंने 2 एक्स्ट्रा बीट दिए. देखो यहाँ पे 0 A10 A11. जैसे ही मैं इसको 0 0 दूंगी, O0 एक्टिव होगा. फिर 0 1 तो O1 एक्टिव होगा, 1 0 तो O2 एक्टिव होगा एंड 1 1 तो O3 एक्टिव होगा. जो भी एक्टिव होगा वो चिप सिलेक्ट में क्या देगा? आउटपुट देगा. मतलब वो पर्टिकुलर प्रोम एक्टिवेट हो जाएगी और वर्ड को काउंट करना का स्टार्ट कर देगी. तो इसने 1024 काउंट किए, इसके भी 1024, इसको भी 1024, इसके भी 1024. तो लास्ट में 4 टाइम्स 1024 उतने नंबर्स ऑफ वर्ड, मतलब कैपेसिटी, वर्ड की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है, यहाँ पे मैंने A0 to A9 दिया हुआ है, वो एड्रेस लाइन है. ओके, एंड D0 D7 मतलब अंदर जो डेटा स्टोर्ड है. ठीक है, D0 D7 उसकी साइज क्या? 8 है. देखो यहाँ पे इसलिए आपको दिया होगा D0 to D8. ओके, सो टोटल कितना हुआ यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर है? इट इज D0 to D7. तो 8, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8 और यहाँ भी 8. ठीक है, सो इट इज 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा. ठीक है, ये 1K आपको जो दिया हुआ है वो एड्रेस लाइन के लिए है, सिंपली कि कितने नंबर्स ऑफ एड्रेस आएंगे, और जितने एड्रेस आएंगे ऑफ कोर्स उतने क्या होंगे? वर्ड्स आएंगे. सो 1024 1024 1024 एंड 1024. ओके, मेक श्योर कि अगर आपको जितने भी एड्रेस लाइन है ना उसका 2:2 करना है, 2:10 उतने इसमें वर्ड अकोमोडेट हो सकते हैं. ठीक है, एंड अगर नंबर्स ऑफ बीट मुझे इंक्रीज करने हैं तो हम क्या कर सकते हैं? 8 को इंक्रीज करना, जैसे हमने आगे किया था ये वाला.
ओके यहाँ पे 4 था तो मैंने उसको 8 में कन्वर्ट किया बाय कंसिडरिंग दिस। लेकिन मुझे अब किसको इंक्रीज करना है, 16 को। एक्चुअली यहाँ पे आगे पीछे लिखा हुआ, दैट्स वाई कंफ्यूजन है, यहाँ पे देख लेना। हाँ, ये 1K वो एक्चुअल में क्या है, एड्रेस का दिया हुआ है। 8 क्या है यहाँ पे, नंबर्स ऑफ बिट है, ठीक है। सो 2⁻10 यहाँ पे होगा, सेम यहाँ पे 2⁻10, यहाँ पे 2⁻10 और यहाँ पे 2⁻10। अब 2 क्रॉस 4 डिकोडर कैसे वर्क करेगा, वैसे आपको मैंने बता दिया, फिर भी इसका एक फिगर मैंने डाउनलोड किया हुआ, एक बार आपको दिखा देती हूँ तो वो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो A0, जैसे हम यहाँ पे दे रहे हैं A10 एंड A11। एज पर द वैल्यू ऑफ दिस A10 एंड A11 कौन सा सिलेक्ट होगा, D0, D1, D2 एंड D3। यहाँ पे देखो 0 0 तो D01 है, 01 सो D11 है। इट इज योर 2x4 डिकोडर जो हमने आगे कॉम्बिनेशन सर्किट में किया था। मीन्स एट ए टाइम आइदर D0 वर्क करेगा या फिर D1 वर्क करेगा या फिर D2 वर्क करेगा या फिर D3 वर्क करेगा, ठीक है। सो जो भी वर्क करेगा वो उतने नंबर्स ऑफ वर्ड को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अगर मैंने फोर लिए हुए हैं तो फोर लिए हैं, सो 1024 मल्टीप्लाई बाय 4 उतने क्या होंगे मेरे टोटल नंबर्स ऑफ वर्ड हो जाएंगे, मतलब वर्ड की कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 0 0 जाएगा, ये सिलेक्ट होगा 2⁻10, 1024 वर्ड इसमें है, फिर ये सिलेक्ट होगा, इसके 1024, फिर ये सिलेक्ट होगा, सो इसके 1024, फिर ये सिलेक्ट होगा तो इसके 1024। सो टोटल 4 टाइम्स 1024 उतने वर्ड इंक्रीज हो जाएंगे, मतलब ये वर्ड की जो कैपेसिटी है वो क्या हो जाएगी, एक्सपांसन हो जाएगा, ठीक है। सो दो वे में है, एक में आपको एड्रेस लाइन है उसके बेसिस पे जाना है, ठीक है, और दूसरे में नंबर्स ऑफ बीट जो आपने दिए हैं उसके बेसिस पे जाना है, ठीक है। बीट्स दिए हैं उसको इंक्रीज कर रही हूँ मैं, सो इट इज अ वर्ड साइज। एंड 1K जो दिया है उसको अगर मैं नंबर्स ऑफ वर्ड इंक्रीज कर रही हूँ, सो इट इज अ वर्ड कैपेसिटी। वो दोनों डिफरेंट है, ठीक है। आपको मेमोरी एक्सपेंशन पूछे तो ये दोनों आपको एक्सप्लेन करने हैं, वर्ड साइज एंड वर्ड कैपेसिटी। ओके, नाउ यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दिया है, ओके, इट इज नॉट ऑल टाइम 0, आपको सिंपली 0 0 दिया हुआ है, इसीलिए इसकी वैल्यू चेंज आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है। सो मुझे सबका स्टार्टिंग एंड एड्रेस एंडिंग एड्रेस लिखना है, तो स्टार्टिंग एंड एंडिंग एड्रेस क्या होगा सबका, सेम सेम ना, बिकॉज देखो अगर ये चिप सिलेक्ट होगी तो ये भी कहाँ से स्टार्ट करेगी, 0 0 0 0 0, और लास्ट एंट्री क्या होगी उसकी, आफ्टर कैलकुलेटिंग और 1024 वर्ड्स, लास्ट एंट्री क्या होगी 1 1 1 1। तो स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, ऑल 0, एंडिंग एड्रेस क्या होगा, ऑल 1, एंड इट इज सेम फॉर ईच एंड एवरी फ्रॉम, ओके। तो वो सिंपल यहाँ पे लिखना है। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी। सो क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी में क्या है, इट डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, नॉन वोलेटाइल एंड वोलेटाइल मेमोरी, ओके। अब अगर आपको पता है तो पहले जो फोन्स आते थे उसमें अगर आप स्विच ऑफ करते हैं, सो अगेन आपको वो लाइक उसका डेट एंड टाइम है वो वापस री एंटर करना पड़ता था मैन्युअली, बिकॉज वो वोलेटाइल मेमोरी थी। वोलेटाइल का मतलब क्या, इट इज नॉट अ परमानेंट, इट इज ए टेम्पररी मेमोरी। जैसे ही आपका डिवाइस है वो स्विच ऑन एंड ऑफ, उसके बाद वापस ऑन होता है, तो जो भी सेट हुआ था प्री सेट वो सारा निकल जाएगा, अगेन आपको मैन्युअली इसको सेट करना पड़ेगा। सो दिस मेमोरी इट इज कॉल्ड एज ए वोलेटाइल मेमोरी। एंड स्विचिंग ऑन पावर आप कुछ भी करें ऑफ करें, फिर भी अगर आपकी जो भी इंफॉर्मेशन है वो स्टोर्ड रहती है, सो इट इज ए नॉन वोलेटाइल। दैट्स व्हाई इट कवर्स द हार्ड डिस्क एंड ऑल थिंग, क्योंकि उसमें डेटा आप वापस एक बार स्टोर किया है तो परमानेंटली हो जाता है, आप उसको नो डाउट उसको रिमूव कर सकते हैं, बट वो इरेज नहीं हो जाता। एक बार आप उसको डिवाइस को लाइक मैंने क्या किया, रिमूव कर दिया और वापस उसको अपने लैपटॉप में एंटर किया तो वो चला जाता है, नहीं, वो स्टोर रहता है। सो विच कंसिस्ट ऑफ रोम मेमोरी, इट इज ए रीड ओनली मेमोरी, because read only memory it is a permanent memory, or you can say it is a non volatile memory। non volatile का मतलब है कि डिवाइस ऑन ऑफ होता है फिर भी आपका जो भी डेटा है वो सेम रहता है। सो दैट्स व्हाई इट कवर द CD, DVD,
फिर फ्लॉपी डिस्क, मेमोरी टैब, यूएसबी ड्राइव, एसडी कार्ड, all thing covered in a ROM memory. Okay, and RAM, it is consist of only static and dynamic memory. Of course, RAM it is also useful for writing operation because read only memory सिर्फ क्या करती है, रीड का काम ही करती है, वो राइटिंग का परफॉर्मेंस नहीं, मतलब राइटिंग नहीं करती है, वो रीड ओनली मेमोरी है. ठीक है. अगेन दिस रोम इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू प्रोम एंड ई प्रोम. ठीक है. इट इज a programmable read only memory, it is a erasable EEPROM, and it is a electrically erasable PROM, which we will cover next. ठीक है. फ्लैश मेमोरी ऑल्सो देयर, बट करंटली आपके वो सिलेबस में नहीं है. यहाँ पे एक्चुअली रोम, रैम, एंड उसमें से कौन सा एज ए PLD आप यूज कर सकते हैं, बस उतना ही. Two types of classification of memory. These are the memory covered in your syllabus. Okay. Read only memory, so ROM. Read and write memory, you can say RWF, RWM, or random access memory. इसको आप है ना random access memory बोल सकते हो, and read write memory भी बोल सकते हो. CAM, it is a content addressable memory, but it is same as a RM, but some additional feature is there in RAM. CAM. Charge coupled device memory, so it is a CCD. First one, ROM. What is ROM? Read only memory is essentially a memory device in which permanent binary information is stored. ओके. उसकी इंफॉर्मेशन क्या होती है, परमानेंट होती है, बिकॉज रोम इट इज़ अ नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, उसमें कोई भी इंफॉर्मेशन लॉस नहीं होती है व्हेन वी आर एंटरिंग और रिमूविंग द डिवाइस. द बाइनरी इंफॉर्मेशन मस्ट बी स्पेसिफाइड बाय द डिजाइनर and is then embedded into the unit to form the required interconnection pattern. Okay, once the pattern is established, it stay within unit when the power is turn off and turn on. अब जो भी अंदर डालते फिर भी वो आफ्टर पावर टर्न ऑफ एंड ऑन वो सेम रहेगा. ठीक है. रोम विच कैन बी प्रोग्राम्ड इज कॉल्ड द प्रोम. जो भी रोम है उसको आप अगर प्रोग्राम कर सकते हैं, सो इट बिकम्स द प्रोम, एंड द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग द इंफॉर्मेशन इन रोम इज नोन एज प्रोग्रामिंग. आप रोम में जो भी इंफॉर्मेशन अल्टीमेटली स्टोर करेंगे ना, इट कॉल्ड एज ए प्रोग्रामिंग, नथिंग एल्स. रोम आर यूज्ड टू स्टोर इंफॉर्मेशन which is of a fixed type such as tables for various function, fixed data and instruction. ROM can be used for designing a combinational logic circuit. उसके advantages दिए and disadvantages. Ease of design, since no simplification or minimization of logic function is required. Of course सिंपल आपको तो डिज़ाइन ही करनी है, उसमें कोई भी लाइक कैमएप वगैरह नहीं आएगा. डिज़ाइन कैन बी चेंज्ड, मॉडिफाई इजीली, आप उसको कॉट पेस्ट कुछ भी कर सकते हैं आपने, अगर आप पेन ड्राइव वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो. ठीक है. एंड लाइक फास्टर देन SSI एंड MSI. व्हाट इज MSI, SSI? IC में ऑलरेडी आ चुका है. व्हाट इज MSI एंड SSI? लॉजिक फैमिली इसमें ही आ जाता है, एंड बेसिक में भी हमने कवर किया था. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ MSI एंड SSI? It is a medium scale integration and a large scale, small scale integration. Okay, so and medium scale integration consists of, like you can say, okay, my screen is visible na? Hello? Yes sir. Okay, so MSI का मतलब है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन. मीडियम स्केल का मीनिंग क्या है कि we can store 1000 numbers of gate in particular IC, and SSI का मीनिंग क्या है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन means we can store 100 numbers of gate in our IC. So this read only memory is a faster compared to this small circuits. Cost is reduced. Disadvantage क्या है कि non utilization of complete circuit. Actually इसका structure इतना बड़ा है कि we can't utilize all the circuit, so it is simply a wastage. And increased power requirement, of course वो टर्न ऑफ ऑन हो फिर भी वो डेटा को स्टोर रखता है, दैट्स उसकी जो पावर रिक्वायरमेंट है वो भी क्या है, ज़्यादा है. एंड जितने आप बिट्स इंक्रीज करते जाएंगे इनपुट वेरिएबल, इसकी साइज भी आपको इंक्रीज करनी पड़ेगी रीड ओनली मेमोरी की. तो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा उसका,
सो मोस्ट इम्पोर्टेंट हो ये, क्योंकि आपको पूछेंगे व्हाट इज रोम, तो आपको ये ऑर्गेनाइजेशन भी लिखना पड़ेगा, उसका डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। तो फर्स्ट यहाँ पे देखो के इनपुट्स है। के इनपुट्स का मीनिंग क्या है कि एड्रेस दिखा रहा है, एड्रेस है ना वो कितने बिट्स से बना है। सो यहाँ पे दिया के इनपुट्स, तो ऑफकोर्स कितने एड्रेस होंगे यहाँ पे, टोटल एड्रेस कितने होंगे 2⁻k, जितने बिट्स है कि 4 बिट दिए है। सो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ एड्रेस लोकेशन, सो 16। तो यहाँ पे आपको के इनपुट्स दिए है, सो कितने एड्रेस लोकेशन आ सकते हैं 2⁻k। एंड व्हाट इज दिस एन, and it is consider numbers of bit of data which is stored at a particular location of address. data कितने bits से बना है, it represented by n, okay, and n outputs, okay। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी डेटा इनपुट नहीं दिया है कि इस एड्रेस लोकेशन पर ये डेटा राइट कर दो, है नहीं, क्यों, इट इज ओनली रीड ओनली मेमोरी, ये राइट का वर्क नहीं करती है, दैट्स व्हाई। अगर रैम है तो राइट का वर्क करेगी, रीड ओनली मेमोरी ओनली मैं एड्रेस दूंगी, वहां से डेटा रीड करेगी, दैट्स इट, ओके। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया वही यहाँ पे लिखा है, ओके। अब कैसे वर्क करेगी देखो, जैसे मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये जो मेरा एग्जांपल है, मैंने यहाँ पे 5 इनपुट्स लिए, सो हाउ मेनी पॉसिबल कॉम्बिनेशन, ओके, मेरे 5 इनपुट्स है, सो एड्रेस कितने होंगे, हाउ मेनी एड्रेसेस आर पॉसिबल, 32। So it is a 5x32 decoder. We are using 5x32 decoder in our RAM organization. So 5 bits means 32 address location are possible from starting from 0 to 31. Okay, and आपको यहाँ पे क्या दिया देखो, 32x8 ROM, 8 का मीनिंग क्या है, each and every data which is stored in an address consists of 8 numbers of bit, and this data we can fetch by numbers of OR gates, and OR gate भी कितने लेने हैं, जितने bits है। So we can take a OR gate from A0 to A7, okay, ये इसका organization है, सिंपल। अगर मुझे यहाँ पे 4 दिया होता तो यहाँ पे 4x16 होता, यहाँ पे 16 एड्रेसेस होते। अगर वो 4 बिट से बना हुआ तो यहाँ पे 4 क्या आते, और गेट आते, ओके, ये क्लियर है। उसके बाद आगे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे ऐसा नहीं दिया होगा, इनपुट में भी दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं कि अगर आपको एड्रेस के इनपुट्स कितने वो नहीं दिया, बट 32 से आप अंदाजा लगा सकते हैं ना कि 32 बोला है तो ऑफ कोर्स 2⁻5 मतलब इनपुट्स कितने हो गए 5, सो यू कैन राइट 5x32 डिकोड। एंड 8 का मीनिंग क्या है, डेटा कितने बिट से बना हुआ है, जितने बिट से बना हुआ है उतने ही यहाँ पे क्या चाहिए, और गेट्स चाहिए। सो सिंपली रोम ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ डिकोडर एज वेल एज नंबर्स ऑफ और गेट, ओके ओके। इसका प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट है। अब ये मुझे दिया हुआ है, चलो कि ऑल वंस का बाइनरी क्या, डेसिमल क्या होगा, कौन मुझे बताएगा। ये 5 बिट्स दी है आपको, I0 to I4, मैंने सबको 1 कर दिया, तो इसका बाइनरी बताओ क्या होगा, सॉरी डेसिमल बताओ क्या होगा, बाइनरी टू डेसिमल, सॉरी 31 ऑफ कोर्स। इसका मीनिंग क्या है, अगर मैं सब में 1 1 दे रही हूँ तो 31 एक्टिव हो रहा है, क्या एक्टिव हो रहा है 31। तो 31 का प्रोग्रामिंग क्या डेटा स्टोर है वो तो यूजर पे डिपेंडेंट है कि मैंने क्या डेटा स्टोर किया हो, या फिर मेमोरी पे डिपेंडेंट है, आपने कुछ इन्फॉर्मेशन दी थी उसमें से ये पर्टिकुलर एड्रेस में ये डेटा स्टोर्ड है, मतलब इट इज अ वन टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग कि ये डेटा स्टोर्ड है। सो ईच एंड एवरी एड्रेस लोकेशन के लिए डेटा आपको दिया हुआ है, इट इज कंसिडर एज ए प्रोग्रामिंग वे। ये ऑलरेडी डेटा आपको दिया हुआ है, उसका प्रोग्रामिंग आपको करना है। जैसे ये 0 0 है तो इसका डेसिमल क्या होता है 0, मतलब कौन सा वर्ड सिलेक्ट होगा तो कि 0 नंबर का वर्ड सिलेक्ट होगा, 0 नंबर का वर्ड तो उसमें क्या क्या 1 है, तो कि A7 1 है, A5 A4 A2 एंड A1, मतलब A7 मैंने इसका डिजाइनिंग किया है। देखो A7 पे क्रॉस करना है क्योंकि A7 नंबर का 0 वर्ड में A7 नंबर का जो बीट है ना वो 1 है, दैट्स वाई। सेम यहाँ पे A5 1 है, A4 A2 एंड A1, ठीक है। अब नेक्स्ट 1 में जाते हैं। सो नेक्स्ट क्या दिया 0 0 0 1, इसका डेसिमल क्या होगा 1, 1 पे क्या क्या एक्टिव है तो कि A4 A3 A2 एंड A0, तो उतना ही होगा। देखो A4 A3 A2 एंड A0, ओके। फिर कोई और देखते हैं, लास्ट वाला देख लेते हैं, चलो ये ऑल वंस, तो कौन से एक्टिव है A5 A4 A1 A0, सो इट इज A5 A4 A1 एंड A0, इट इज कॉल्ड एज ए प्रोग्रामिंग, बहुत ईजी है,
कुछ भी नहीं है, डेटा आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अगर आपको पूछे रोम का तो व्हाट इज रोम, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज जो मैंने आगे करवाए, उसका ऑर्गेनाइजेशन, ये डायग्राम, ये कुछ भी रैंडम डेटा आपको लिख देना है, ठीक है, और उसको यहाँ पे प्रोग्रामिंग करना है, ठीक है। जैसे ही 0 नंबर का सिलेक्ट होगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पे 1 है तो ए से 1 क्या आएगा 1, फिर A5 क्या आएगा बाहर 1, A4 भी क्या आएगा 1, A2 भी क्या आएगा 1, एंड A1 भी क्या आएगा 1, उसके अलावा सारे 0। तो क्या हुआ एक्चुअल में यहाँ पे जो भी डेटा स्टोर था वो आउट हुआ। सो इट इज़ ए रीड ओनली मेमोरी। ओके, सो लिखना बहुत है, आप आराम से लिख सकते हैं 7 मार्क्स में अपने हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 स्टार्टिंग के 4 एड्रेसेस लिए हैं और एंडिंग के 4 एड्रेस लिए, आप सारे भी ले सकते हो बट यहाँ पे 32 एड्रेस है, दैट्स वाई। तो मुझे 32 का क्या लिखना पड़ेगा, बाइनरी सबका, और बाइनरी का डेसिमल करके जो भी वर्ड सिलेक्ट हो रहा है उसमें जो जो भी 1 है वहाँ पे क्या करना है, क्रॉस मार्क। ओके, क्लियर। मैंने जो आपको एक्सप्लेन किया वही सेम यहाँ पे लिखा हुआ है ये सर, पर उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है वो चीज़, ठीक है। एनी डाउट है किसी को इसमें, किस तरह से प्रोग्रामिंग किया, ये ऑलरेडी आपको दिया है, ठीक है, ये डेटा आप अपने हिसाब से उसको वेरी कर सकते हैं। एनी डाउट इन दिस, ये मैंने कैसे बनाया है उसमें, ओके। सो एग्जाम्पल से 2 लिख लीजिए, नेक्स्ट टाइम हम वो कवर करेंगे। ओके, इसका मैं आपको एग्जाम्पल करवा देती हूँ, देखो यहाँ पे कैसे किया हुआ है। आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि इम्प्लीमेंट द फॉलोइंग फंक्शन यूजिंग रोम। ओके, आपको ये 4 फंक्शन दिए, ओके, ठीक है। चलो, इसमें मेन टर्म्स कहाँ तक जा रही, तो 7 तक। 7 का मीनिंग क्या है, मैं ऐसा एज्यूम कर सकती हूँ ना कि 7 नंबर्स ऑफ वर्ड प्रेजेंट है मेमोरी में, सॉरी 7 नहीं 8, 0 to 7 मीन्स 8 नंबर्स ऑफ वर्ड प्रेजेंट है। तो 8 कब आएंगे, एड्रेस लाइन, एड्रेस इनपुट मुझे कितने दिए होंगे, तो मुझे 8 वर्ड मिलेंगे, 3। सो A2 A1 A0 आपको एज्यूम करना है 3 है, कैसे सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 7 तक जा रहा है। सो 0 to 7 मतलब 8, अगर 8 एड्रेसेस है तो ऑफकोर्स उसके इनपुट कितने हो गए 3। सो वी जस्ट राइट A2 A1 A0, उसके 8 कॉम्बिनेशन आपको आते हैं कैसे लिखने हैं। एंड F1 F2 F3 F4 कहाँ कहाँ पे 1 है, F1 तो क्या 1 3 4 6, सो 1 3 4 एंड 6। F2 कहाँ कहाँ पे 1 है, 2 4 5 7, so it is a 2 4 5 7, okay, 0 1 5 7, so 0 1 and 5 and 7। 4 कहाँ पे 1 है, 1 2 3 4, so it is a 1 2 3 and 4। ये आपका टेबल बन गया, अब बहुत इजी है। ओके, डिकोडर कितने का आएगा, कौन मुझे बताएगा, चलो 3 क्रॉस 8 2 क्रॉस 4 कितने का आएगा डिकोडर, 3 इनपुट्स है, डिकोडर की साइज क्या आएगी, इसकी बात कर रही हूँ, यहाँ पे जो दिया है डिकोडर की साइज क्या आएगी, अगर मैं यहाँ पे 3 इनपुट्स दे रही हूँ तो डिकोडर की साइज क्या आएगी, इट इज ए 3 क्रॉस 8 ऑफ कोर्स। सो मुझे सिंपली 3 क्रॉस 8 डिकोडर बनाना है, A1 A0 A2 मैंने ले लिया है, कितने वर्ड्स है वो आपको ऑलरेडी बता दिया है, कितने हैं 8, सो आई जस्ट राइट 0 to 7। ओके, कितने बिट से बना है, क्योंकि मेरे पास तो 4 ही फंक्शन है तो ऑफ कोर्स कितने बिट से बना होगा, 4 बिट से, F1 F2 F3 F4। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कितने और गेट्स आएंगे, F1 F2 F3 F4। अब तो बहुत सिंपल है, F1 कहाँ कहाँ पे 1 था, तो कि 1 3 4 6, सो 1 3 4 6 पे क्रॉस करना, सेम 2 4 5 7, सो 2 4 5 7, 0 1 5 7 0 1 5 7, और इसका क्या था 1 2 3 4। ठीक है, ये आपको सिंपली अगर 7 मार्क्स में या 5 मार्क्स में पूछे तो 2 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेंगे आपको, जितना है 8 के कॉम्बिनेशन में टाइम लगा उतना ही। उसके बाद ये तो आपको ऑलरेडी दिया कहाँ कहाँ पे 1 है, और ये ड्रॉ करके, ये और गेट ड्रॉ करके सिंपली क्रॉस कर देना है कहाँ कहाँ पे 1 है। ओके, क्लियर, हेलो, ओके। नेक्स्ट है, ये एक्सरसाइज आपको करनी है, प्लीज राइट डाउन।
मैं नेक्स्ट लेक्चर में पूछूंगी आपको वेडनेसडे 10 o'clock। डिजाइन ए कॉम्बिनेशन सर्किट यूजिंग प्रोम इट इज नथिंग बट रोम ही है, उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज ए प्रोम। क्या बोला है आपको, देखो सर्किट 3 बिट बाइनरी नंबर एक्सपेक्ट कर रही है एंड जनरेट इट्स इक्विवेलेंट x3। इसका क्या मीनिंग है, इनपुट में 3 बिट्स दिए, सो यू कैन यूज 3x8 डिकोडर, 8 वर्ड मिलेंगे आपको। ओके उसके अलावा 8 वर्ड है ना, वो 3 बिट्स से बने होंगे, बिकॉज आपको क्या बोला, 3 बिट बाइनरी नंबर जनरेट करेगा इक्विवेलेंट एक्सेस 3, तो ऑफकोर्स डेटा भी कितने बिट से बने होंगे, 3 बिट से। बट डेटा का आउटपुट क्या होगा, एक्सेस 3 ऑफ दिस 3 बिट। यहाँ पे जो 3 बिट दिए है ना, तो F1 F2 F3 तक ही वो जाएगा, एंड 000 का एक्सेस 3 क्या होता है वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद ओके ये दोनों दिए हैं, सो ये आप आइडिया लगा लेना, आपको आ जाएगा ये कैसे करना, इसका मैं आपको नहीं बता रही, ठीक है। यू विल सी नेक्स्ट टाइम। प्लीज राइट डाउन दिस 2 एग्जाम्पल, after that I will take attendance, and if you have any doubt in this particular theory, so please ask. Okay, please write your NMN number in chat box. One 64. Okay, 165, 166, 167, 169, 70, 70, 171। इतना क्यों एब्सेंट है आप, 171 इतनी सारी एब्सेंट्स क्यों है बताइए, 171। अदरवाइज मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, मैं एब्सेंट लगा देती हूँ, ठीक है। आपके मिड सेम में 2 ही चैप्टर रहेंगे, ओके। मैंने आगे अनाउंस किया था, इसे बता देती हूँ, 3 और 4 मिड सेम 2 में रहेंगे।
हेलो। हाँ बोलो। हाँ मैम, गलती से लेफ्ट हो गया था मैम। अच्छा ओके, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्यों नहीं आ रहा, इतने मैम एब्सेंट क्यों है? फंक्शन में था, यहाँ से थोड़ा दूर है वो अंबाजी साइड, तो वहाँ पर नेटवर्क नहीं था बिल्कुल भी, इसलिए अच्छा मेरे से कनेक्ट ओके, लेकिन अभी तो आ रहा है नेटवर्क आपका प्रॉपर, अभी कहाँ पे है? वापस आ गया हूँ मैम। कहाँ पे? वापस आ गया हूँ, बोरसद रहता हूँ। अच्छा ओके, तो अब तो आप आनंद रेगुलरली अटेंड करेंगे ना? जी। मैं आपको बता देती हूँ, वैसे सबको ऐसा नहीं, सिर्फ आपको, क्योंकि आपकी फीस एज वेल एज आपके जो भी यहाँ पे अटेंडेंस है उसके बेस पे डिटेल लिस्ट बनाने वाले हैं। तो जो भी लाइक डिटेल है उसको मिड सेमेस्टर 2 नहीं देने देंगे आपको, मिड सेमेस्टर 2 में अपियर नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो रेगुलर लेक्चर अटेंड करना, और बिफोर लाइक मिड सेम तक आपकी अटेंडेंस है वो काउंट होगी, उसके बाद डिटेन का लिस्ट आ जाएगा। ओके मैम। Okay, just repeat episode number 161, 162, 168. After that 174, 170, एक मिनट 175, 176, 174 present है, okay, 175, 176 absent, 181, 183, 184, 189, 190, 199, 203. 199 present मैम. Okay. ओके नेक्स्ट 203 एब्सेंट, उसके बाद 210, 213, नेक्स्ट 218, 219, उसके बाद है 227, 228, 229, 233, मैम 30, हाँ 218 प्रेजेंट. 28 शिव कुमार आप प्रेजेंट है? 218 मैम 218. 218 जय। यस मैम. ओके ठीक, नेक्स्ट इट इज ए 33, 34, 35 and 37. Okay, thank you.